What do you think the Indian people saw in you? Did they feel that you had a particular sympathy for their cause? What made you the figure that you are in their eyes? It's what I've done for them. It's what they've seen that I've done. The officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. General Gandharv Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. We shall provide all protection and safety. No measures of reprisals would be taken. Free boarding, messing, medical facilities will be provided to you all and all your rank. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. I asked the Pakistani Chief of Staff, Brigadier Baghir Siddiqui, what he'd felt about the ceremony. Well, it's all right. Part of the game, I suppose. It didn't cause you any qualms? Well, you can understand our feelings. But as the General said, this does happen, and so people have to play the game, and I think it's a part of the game. We have to accept it in good grace. Why did you, in the end, surrender? Because for the consideration of the human lives. Could you have fought on? We could have fought on for a long time, not less than 30 days. With due military ritual, the war in the East had been brought to its ceremonial conclusion. DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। Good evening. For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening
between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy, and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. दोस्तों, देश के हालात पिछले लगभग 20 दिनों से काफ़ी गंभीर चल रहे हैं। जब से देश में जम्मू कश्मीर में पहलगाम के आतंकी हमला हुआ, जिसमें कि 28 लोग बेकसूर लोग मारे गए, तब से अब तक यानी 10 मई तक देश में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, राजनीति के साथ साथ रणनीति की जो रस्साकशी चल रही है, कश्मकश चल रही है, उसको लेकर पूरे देश में एक समस्या, एक चिंता की चेहरे सबके दिख रहे हैं। सरकार के माथे पर तो शिकन है ही, साथ ही देशवासियों के चेहरे पर उनकी दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि पिछले 20 दिन से लगातार पाकिस्तान अपना पड़ोसी देश भारतीय सीमा पर लगातार गोलीबारी और बमबारी कर रहा है। इसको लेकर पूरे देश में एक गंभीर चिंता समाई हुई है। हर किसी को ये चिंता सता रही है कि जाने कब पाकिस्तान हिंदुस्तान के किस शहर पर ड्रोन के जरिए हमारे देश के किसी भी प्रांत या शहर में बमबारी कर सकता है। इस बात को लेकर केंद्र सरकार तो चिंतित है ही, उसने अपनी तीनों सेनाएं को युद्ध के स्तर पर तैयार रहने के लिए कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है, वो भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के कोशिश में लगी हुई है। हमेशा भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन उन्होंने वक्त पड़ने पर किया है। अभी हाल में भी 6 तारीख को भारतीय सेनाओं ने पाक अधिकृत कश्मीर में हमला करके पाकिस्तान को ये चेता दिया कि अगर हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियाँ आपकी तरफ से होती हैं तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, हम उसका माकूल जवाब देंगे। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपर्ली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा। दोस्तों, यंग
युद्ध चल रहा था, जंग छिड़ी हुई थी, तब अमेरिका ने भारत को डराने के लिए 7वां बेड़ा बिल्कुल भारतीय सीमा पर खड़ा कर दिया था। उस वक्त भी इंदिरा गांधी अमेरिका के आगे नहीं झुकी और उन्होंने उनको माकूल जवाब देते हुए अमेरिका को जता दिया था कि आप हिंदुस्तान पे सरकार के रहते हुए कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते। इस तरीके से, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी विश्व के मानचित्र पर अपने भारत का नाम रोशन कर रही थी, उसको आज लोग उनकी यादगार के लिए सोशल मीडिया पर उनके चर्चे कर रहे थे। उनके बारे में लोग उनके किए गए कार्यों को याद कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि भारत वर्तमान सरकार पाकिस्तान से निपटने के लिए तैयार नहीं है। वो हर पुरजोर कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आपको मालूम है कि जब 1971 में किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और साथ में बंगाली पाकिस्तान में रह रहे बंगालियों को पर जो जुल्म हो रहे थे उसका जवाब देने के लिए इंदिरा गांधी ने किस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कर बांग्लादेश बना दिया था। इस बात को लेकर आज श्रीमती इंदिरा गांधी की भारतीय में सभी लोग याद कर रहे हैं। उनके फ़ोटो लगाकर उनके किए गए बनाए गए इतिहास को याद कर रहे हैं।